Okay. So why did they put that in a JavaScript book? That क्या है पता नहीं यहाँ पे, चल देखते हैं ये बुक किसके लिए है. The cognition. Now reacting to the virtual world. प्रोजेक्ट से देखते हैं. Online people have needs. Alright, we know web is virtual, but the people on the web are real people. ठीक है, with real world needs है ना. Needs like searching for a killer क्या था, मीट लोफ या मीट लोड है पता नहीं. मीट लोफ रेसिपी. डाउनलोडिंग देयर फेवरेट सॉन्ग्स बाय मीट लोफ. और ठीक है, समटाइम्स इवन a huge as users shopping for a new home. Fortunately, the web differentiates when it comes to prioritizing your needs करके. ठीक है. Find an easy way to buy a house online. ठीक है. Like talking to a brick wall, nothing happens. Okay, the web isn't always as responsive as it could be. In fact, it can sometimes feel downright cold. You'd expect the entering data and take care. But JavaScript talks back, है ना. वही इंटरेक्टिव लाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि JavaScript flips the switch and turns on a web page into an interactive experience. It powers things that can listen to your needs, process your input and response to your deepest desires. ठीक है, perhaps. ठीक है, समझ में आ गई बात ये कि जैसे देखिए, बिना जावास्क्रिप्ट का ये सब काम नहीं करेगा. ठीक है, जैसे पिछला वाला स्क्रीन को देख लीजिए और ये स्क्रीन को देख लीजिए, तो फॉर प्रैक्टिस वी कैन डू दिस ऑल्सो. ठीक है, आप कर सकते हैं एक काम भी कि अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होगा तो ये लिखिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, हाँ एक चीज मतलब स्क्रिप्ट तो चाहिए चाहिए होगा वहाँ पे. इफ यू आर नॉट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यूज ए सर्वर साइड स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा सारा का सारा डेटा को, है ना. तो बट ये इसमें तो एक फॉर्मूला ही चाहिए ना, तो फॉर्मूला तो हम जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, तो इजीली हो जाएगा, है ना यहाँ पे. तो जावास्क्रिप्ट ब्रिंग्स अ वेब पेज टू लाइफ बाय अलाउइंग इट टू रिस्पॉन्ड टू यूजर्स इनपुट, है ना. ठीक है, मतलब इंटरेक्टिविटी लाने का बात कर रहा है. तो लाइक दिस ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आ गया. Now, light schema interaction way. Java brings interaction. Now, JavaScript sits with HTML, CSS as one of the three pieces of modern web page construction. HTML provides the structure, CSS adds styles, and yeah, puts the rubber to the road and makes things happen. Now, to find the path to an interactive web page, you must follow the trail, है ना. तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर स्टाइल, उसके बाद में तब एक्शंस में आना पड़ेगा. That is JavaScript. Now, similar to CSS, JavaScript code often resides right there in the web page, है ना. तो ये हम लोग को पता है. तो we know these things. JavaScript springs into action when the user asks the page to perform a task. मतलब event driven. ठीक है, programming. Now, can't you do all the same stuff with HTML, CSS? Web was still pretty cool before JavaScript, है ना. तो देखिए, तो they are not interactive, very correct. ठीक है, the problem with HTML and CSS aren't they really they CSS aren't really interactive. They certainly, ठीक है, there certainly are CSS tricks you can use to manipulate styles in a very specific situations, such as mouse hover, ठीक है, over links. But your options are fairly limited if you are using just HTML and CSS. Very correct. Now, JavaScript allows you to detect just about anything that takes place in a web page, like a user clicking button, resizing the browser window, or entering data into a text field. And since JavaScript is a scripting programming language, you can learn to write code to respond to these user interactions, like performing a calculation, take a dynamically swapping images on the page, or even validating data, है ना. ठीक है. Now don't swear the JavaScript details, at least not yet, है ना. Don't sweat, है ना, not swear, sweat.
मतलब डरने लगेगा असल में, ठीक है। तो ऑल्दो जावास्क्रिप्ट इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल्सो थिंग्स, वी नो यू आर एट द बिगनिंग ऑफ योर जर्नी, ठीक है। रेस्ट अश्योर्ड दैट इवेंट्स, फंक्शंस, ठीक है, एंड मेनी अदर पीसेस ऑफ जावास्क्रिप्ट पजल विल कम टुगेदर इन टाइम। बिसाइड्स यू आर प्रोबेबली फ्यूचर फर्दर अहेड, ठीक है, ऑफ द गेम देन यू रियलाइज, है ना, ठीक है। इनफैक्ट आप तो बहुत आगे है, बिकॉज आपको तो काफी कुछ आ रहा है, ठीक है, यू नो प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आपको फंक्शन लूप ये सब आ ही रहा है। अभी बुक को ऐसा बनाया गया ये समझते हुए कि मतलब लोगों को जनरली कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, उस लेवल पे, यस सर। है ना। तो खैर HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट मतलब रियल इंटरेक्टिविटी, ये मालूम है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए, नाउ यू ऑलरेडी नो मोर देन यू थिंक, लुक एट द कोड फॉर हाउस फाइंडर एंड राइट डाउन व्हाट यू थिंक ईच सर्कल। तो ये खैर आप अपना से कर लीजिए, ठीक है। तो ये मतलब पहले जो हो रहा था, पहले जो दिखाया गया उसको, जैसे यहाँ पे वैलिडेट कर रहा है जिप कोड को, ठीक है ना, एंड हियर दे आर कैलकुलेटिंग द प्राइस। तो ये आपको लिखना है क्या हो रहा है वहाँ पे ना, ठीक है, कि वो कोड क्या कर रहा है, ठीक है। इट्स ओके टू गेस करके। तो गेस क्या, हम लोग को तो पता चल ही रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, है, ठीक है। एक एक चीज मालूम चल रहा है हम लोग को, तो ठीक है। तो अब आपको जो लगता है यू कैन पॉइंट इट आउट, ठीक है, आप इसको पॉइंट करके रख सकते हैं। और भी है वैसे दिया हुआ है, तो चलिए वो आंसर दे दिया असल में यहाँ पे ना, उसी यस चीज सर। का। फिर ये बात भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमको स्क्रिप्ट टैग में लिखना पड़ता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को वी ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्किप, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। your browser can handle HTML and JavaScript, है ना। you all know that a browser knows how to take your HTML and display it, ठीक है। and you have used CSS to tell the browser how to show different parts of your HTML. Think of JavaScript as just another way to talk to the browser, but instead of telling the browser how to display something like HTML CSS, you are giving browser some commands to follow, है ना, ठीक है। ये फर्क है, ठीक है, got it। नाउ मैंस वर्चुअल बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, नीड्स योर हेल्प। चलिए अब यहाँ से आपका प्रोजेक्ट असल में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो जो आई रॉक इंटरेक्टिव वाला प्रोजेक्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेश अप अ सक्सेसफुल गिग राइटिंग, ठीक है, HTML, है ना, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले अब मान लीजिए हमको प्रोजेक्ट अगर समझना है, ठीक है, तो मान लीजिए व्हाट इज गिग सबसे पहले, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा हम लोग को कि गिग क्या होता है ना, ठीक है। तो व्हाट इज अ गिग, सर क्या बोले सर? ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना एक कि सक्सेसफुल गिग राइटिंग HTML एंड पेजेस करके, है ना, ठीक है। तो फ्रेश ऑफ, ठीक है, ऑफ अ सक्सेसफुल, ठीक है, गिग राइटिंग। तो व्हाट इज गिग राइटिंग सर सबसे। गिग हाँ, राइटिंग। हाँ। अब इसका आगे में क्या कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा पता नहीं, ठीक है। यस सर। तो अब गिग का ऐसे सेवरल मीनिंग्स होता है, देयर मेनी मीनिंग्स एक्चुअली, ठीक है, ऑफ गिग, है ना, ठीक है। तो मतलब सर कोई गिग काम जो आप राइट। टेम्पररी करते हैं नॉर्मली उसको कई बार गिग बोला जाता है ना, ठीक है। तो वी कॉल इट अ यस सर। गिग, रिमेंबर, ठीक है ना। तो जैसे अभी अगर आप गूगल करके भी इसका डेफिनेशन देखिएगा, ठीक है, तो मुझे दो डेफिनेशंस यस मिल रहा सर। है यहाँ पे। तो एक तो है, ये तो मैंने बहुत बार सुना हुआ है असल में, ठीक है, कि जो ये बहुत बार आजकल लोग ये होता है ना यूट्यूब पे जो परफॉर्मेंस वगैरह रहता है, जो गाना वाना गाता है स्पेशली, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग कभी कभी छोटा मोटा परफॉर्मेंस कहीं कहीं जाके करता है, ठीक है, तो दे कॉल इट अ गिग, रिमेंबर, ठीक है। तो विच इज यूजुअली अ लाइव परफॉर्मेंस, ठीक है, और लाइव परफॉर्मेंस बाय म्यूजिशियन और ग्रुप प्लेइंग पॉपुलर, ठीक है, और सम जैज म्यूजिक करके बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो दैट इज अ गिग, या एक जॉब, ठीक है, स्पेशली दैट इज टेम्पररी, ठीक है, या फ्रीलांस टाइप का होगा, ठीक है, इनफॉर्मल होगा, ऑन डिमांड बेसिस आपको करना है ना, ठीक है, छोटा सा कोई काम करना है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ गिग, ठीक है। तो गिग इज समथिंग स्मॉल, मतलब एक स्मॉल एक्टिविटी को कई बार हम लोग गिग बोलते हैं ना, ठीक है। तब इसका गिग का क्या मतलब है वो देखते हैं यहाँ पे, कि फ्रेश ऑफ, ठीक है, ऑफ अ सक्सेसफुल गिग राइटिंग HTML CSS पेजेस, यू हैव बीन कॉल्ड इनटू, है ना, ठीक है। मतलब आपको भी गिग राइटिंग के लिए बुला रहा है, मतलब छोटा सा मतलब रैंडम काम दिया जा रहा है यहाँ पे करने के लिए, वो बोला जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे, ठीक है। दे बीन कॉल्ड इनटू योर बॉस ऑफिस, ठीक है, टू सी हिज लेटेस्ट ऑनलाइन इन्वेंशन, ठीक है, द आई रॉक। तो ये है वो आई रॉक, ठीक है। चलिए देखते हैं। Now the virtual pet, ठीक है, is making waves, ठीक है, at all the toy conferences, but beta users are really unhappy with the online pet करके, ठीक है ना। तो चलिए एक मतलब ये पेट है, कुछ करेगा, है ना, ठीक है, कुछ करेगा मतलब आपको हंसाएगा खिलाएगा, जैसे अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा वो ना टॉकिंग टॉम, नहीं है मोबाइल में। यस सर। वो एक तरह से क्या पेट कैट ही तो है ना।
तो बच्चा लोग क्या करता है, बच्चा लोग उसके साथ में खेलता है, ठीक है, उसको नहलाता है, उसको खाना खिलाता है, ठीक है, और वो बड़ा होते रहता है, ठीक है, उसका बर्थडे होते रहता है ना। तो वो भी पेट हो गया, एक वर्चुअल पेट हो गया ना, ठीक है। तो सिमिलरली ये लोग भी वैसे कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे एक वर्चुअल पेट बना रहा है, ठीक है। तो फाइन, दैट इज अ प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है ना। तो लेकिन जो ये वर्चुअल पेट है, ठीक है, इसका बीटा लॉन्च हुआ है, और बीटा यूजर जो भी है, ठीक है, वो इससे हैप्पी नहीं है ना, ठीक है। अपेरेंटली द यूजर्स आर क्लिकिंग ऑन द रॉक एंड एक्सपेक्टिंग, ठीक है, समथिंग कूल टू हैपन, है ना, ठीक है। लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है ऐसा, ठीक है। बट ठीक है, योर बॉस नेवर थॉट अबाउट दैट, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू टू मेक द रॉक इंटरैक्टिव, ठीक है, आई रॉक इंटरैक्टिव एंड गेट द ग्लोरी, ठीक है, और गो डाउन इन फ्लेम्स, ठीक है, विद द आई रॉक करके, ठीक है। तो मतलब अभी तक क्या है आपका ये जो प्रोजेक्ट है, मे बी इट्स ओनली अ इमेज, ठीक है, एक्चुअली ना, इट्स ओनली एन इमेज, ठीक है। तो जो कुछ नहीं करता, हिल्टा डुल्टा बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए, हियर इज द आई रॉक सो फार, ठीक है, जस्ट सम HTML एंड CSS एंड दैट मीन्स नो इंटरेक्शन विद द यूजर, है ना। तो अभी यूजर कुछ कर भी नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। जैसे यही पेज हम लोग को सामने दिखता है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन नॉट डू एनीथिंग हियर, ठीक है, बस हम स्क्रॉल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं ना इसके साथ में। तो अब इसमें यस इंटरेक्टिविटी सर। लाना है, ठीक है। तो देखिए, यूजर्स क्लिक कर रहा है आई रॉक के ऊपर में, ठीक है, या मोबाइल पे तो मे बी टैप कर रहा है, बट नथिंग इज हैपनिंग, है ना, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या है, बीटा, ठीक है, यूजर्स क्लॉगिंग, है ना, ठीक है, द टेक सपोर्ट लाइंस, तो मतलब एकदम ये इरिटेट हो गए, आयरेट, ठीक है। बीटा यूजर जो है वो कॉल कर रहा है, इट वोंट रिस्पॉन्ड टू मी, ठीक है, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद माय ब्राउजर, ठीक है, इज इट समथिंग आई सेड, है ना, ठीक है। मतलब वो दुनिया भर के कंप्लेंट्स आ रहा है इसमें। चलिए आगे क्या करना है हम लोग को ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, डू यू थिंक द रॉक शुड बी एबल टू डू टू इंटरेक्ट विद द यूजर्स, है ना, ठीक है। जैसे वो टॉकिंग टॉम को देखिएगा, ठीक है, उसको मारने से वो मतलब चोट लगने का नौटंकी करता है, ठीक है ना, या बहुत ज्यादा मारिएगा तो गिर जाता है या फट जाता है कभी कभी, है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। देन यू कैन फीड हिम, ठीक है, यू कैन मेक हिम टू स्लीप, ठीक है, वो बिस्तर में जाके सो जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एक्टिविटीज उसके साथ में बच्चे लोग करते हैं नॉर्मली, है ना। तो वही यहाँ पे भी आपको सोचना है कि क्या क्या किया जा सकता है उस रॉक के साथ में, ठीक है। ऑब्वियसली मे बी लिफ्टिंग द रॉक, ठीक है, या जो भी है, ठीक है, या उसको रोल करना, ठीक है, या उठा के फेंक देना कहीं पे, ठीक है, मतलब some sort of things like that you can guess, ठीक है। So not only it is up to you to make the iRock interactive, but you are going to have to learn some JavaScript along the way. ठीक है, that's okay though. ठीक है, you will have the pet rock saying hello in no time, है ना। चलिए, now here's what you are going to do. ये पेज था क्या, ये पेज नहीं था ना, नहीं ये पेज था। यही था सर। अच्छा, यहीं से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। यस सर। तो ये तो सिंपल है, मतलब एक पेज में हम लोग को एक पत्थर का फोटो लाके इस तरह का, है ना, ठीक है ना। तो सपोज, है ना, ठीक है, CARTON, कार्टून, ROC क्या रॉक करके आप लिखिएगा, तो देखिए ना बहुत सारा आ गया ना इमेज यहाँ पे, देखिए, आई थिंक दिस मैचेस, ठीक है, ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है, ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें ज्यादा वो नहीं, मतलब इसको रोल रोल कराना है तो हम लोग रोल करा सकते हैं आराम से, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो ऐसा कोई इमेज डाउनलोड करके एंड देन एक पेज में आपको डाल देना है, ठीक है, टू पुट इट ऑन अ पेज लाइक दिस, है ना, ठीक है, खाली पेज है उसमें डाल दिया गया। तो ये तो इजी है, आप इमेज टैग से इजीली डाल दीजिएगा वहाँ पे, है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है, उसको इंटरेक्टिव कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो नॉट ओनली इट इज अप टू यू कि उसको ये बनाए, बट थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले एक iRock का HTML पेज बनाइए, वेब पेज बनाइए, ठीक है, यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू दिस, ठीक है। देन उसके बाद में आपको एक अलर्ट बनाना है, देखिए ना, ठीक है, ऐड अ जावास्क्रिप्ट अलर्ट टू मेक द रॉक ग्रीट यूजर्स, ठीक है, व्हेन द iRock वेब पेज इज लोडेड, है ना, ठीक है। तो पेज आएगा, ठीक है, तो एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, मतलब पेज लोड होने से एक मैसेज बॉक्स आ जाना चाहिए, और मतलब वो हेलो बोलेगा सिंपली, है ना, ठीक है। दैट इज फेयरली सिंपल आई थिंक, है ना, इसमें तो कोई खास कुछ है नहीं, ठीक है। यस सर। तो ये करना पड़ेगा ना, हो जाएगा। सर ट्राई करते हैं सर। ट्राई करते हैं, चलिए। सर ये पांचवें स्टेटमेंट अकॉर्डिंग एग्जैक्टली मतलब है, तो एक बार और मतलब इवेंट हैंडलर वाला पॉइंट सर एक बार बता दें सर। अच्छा, मैं लाइव दिखा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इवेंट हैंडलर क्या होता है ना, ठीक है। सर मुझे वो पांच पॉइंट के अकॉर्डिंगली करना क्या है सर? आपको एक पेज बनाना होगा, एक पेज बनाना होगा, ठीक है, जैसे वही मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। और उसमें जो यस सर। कंफ्यूजन होगा वो मैं वो करता हूँ, सॉर्ट आउट कर देता हूँ। यस सर। एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग हेड फर्स्ट के नाम से, नहीं तो ई कॉमर्स खोल गया फिर।
तो जैसे उस बुक से हम लोग काफी काम कर रहे हैं, तो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर फॉर हेड फर्स्ट। ठीक है, एंड अभी हम लोग हेड फर्स्ट का जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन दिस इज एग्जाम्पल का नाम क्या था, आई रॉक है ना। तो चलिए, द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको करना क्या है, एक इंडेक्स का फाइल बनाइए। ठीक है, और क्योंकि हम कोई सर्वर साइड यूज नहीं करने जा रहे, तो HTML सिंपली है ना। ठीक है, तो इसको आप यस सर। डायरेक्टली भी मतलब वो कर सकते हैं, किसी वेब सर्वर का सहारा ले सकते हैं इसको देखने के लिए। आई थिंक वेब सर्वर विल बी बेटर, बिकॉज कहीं कहीं पे जावास्क्रिप्ट क्या करता है ना, आपको मना करता है। मतलब जो ये है ना कोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सब साइट से मैं दे देता हूँ, पढ़िएगा इसको। ठीक है, CORS है ना, कोर्स करके। ठीक है, तो अगेन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मतलब वहीं पे मिलेगा, वो मोजिला में है। ठीक है, यहाँ पे ये पता नहीं क्यों हिट हो रहा है ऊपर में। ठीक है, तो बट दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई थिंक। ठीक है, अगर मतलब पढ़िएगा अच्छे से तो ठीक है, द मीनिंग इज क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग करके। ठीक है, जैसे क्लाइंट सर्वर आपस में जब रिसोर्सेज शेयर करता है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप सर्वर के साथ में कम्युनिकेट कर रहे थे, समथिंग इज कम्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, और कुछ हमसे वहां पे जाता है, तो ये रिसोर्स शेयरिंग होता है वहां पे ना। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन नेम्ड एज कॉर्स करके। ठीक है, तो अभी बहुत सारा सिक्योरिटी लाया गया है ब्राउजर के अंदर में, कि अगर आप मतलब क्लाइंट सर्वर के साथ काम करते हैं, तो फाइल के साथ में सारा काम नहीं हो पाएगा सही ढंग से। ठीक है, द मेनी फीचर्स जब आप यूज कीजिए, स्पेशली जावास्क्रिप्ट वाला फीचर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी नीचे आया ना, ये सब अगर आप यूज करते हैं, फेच API वगैरह, विच इज वेरी कॉमन नाउ डेज। ठीक है ना, तो ये सब चीजें अगर आप यूज करते हैं, तो मतलब बिना सर्वर का काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ के रखिए ये सब चीजों को, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ताकि कहीं पे दिखे अगर आपको तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम ओके। ऐसे मॉर्निंग में जैसे मेरा आदत है कि कोई ऐसा काम अगर करता हूँ, जैसे अभी भी मेरा आदत रहता है कि अपना कपड़ा खुद से आयरन करता हूँ। ठीक है ना, ये सब चीजें। तो मॉर्निंग ऑफिस जाना था, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, कपड़ा ये सब आयरन कर रहा था। तो अब वीडियोस देखना, तो क्या देखा जाए, तो बहुत दिन के बाद में इच्छा हुआ कि चलो एक बार प्रोफेसर मौसम को फिर देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने वॉच हिम बहुत पहले, ठीक है, आई थिंक 3 साल पहले। ठीक है, जब मैं वॉच कर रहा था, जब फर्स्ट टाइम मतलब AI को एक्चुअली मैं वो कर रहा था, ये मतलब AI की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, प्रॉपरली जाने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय देखा था। एंड आज जब वो वीडियो देखा ना, मैंने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग लगा मुझे, जैसे आज आई कुड कनेक्ट विथ हिम। ठीक है, इनफैक्ट टुडे आई रियलाइज, ठीक है, फ्यू थिंग्स मतलब मैं वहां बता सकता हूँ उनको, ऐसा लगा मुझे। ठीक है ना, मतलब एग्जांपल्स में एक्चुअली, जैसे उन्होंने नाम लिया एक मूवी का वहां पे ना। ठीक है, जैसे ही वाज टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स ऑब्वियसली है ना। ठीक है, कि ENIAC का बात कर रहे थे वो, या वो बात कर रहे थे टर्म का ह्यूमन कंप्यूटर्स। आई डिड नॉट रियलाइज इन दोज डेज एक्चुअली है ना। ठीक है, कि ये सब भी उन्होंने बात किया था उस डिस्कशन में। ठीक है, शायद सुना होगा उस समय में, बट आई डोंट रिमेम्बर दिस थिंग्स है ना, ह्यूमन कंप्यूटर्स। एंड मे बी आई थिंक इन्हीं का मतलब बोला हुआ था, जिससे कि मैंने वो सब मूवीज देखा, आई डोंट नो है ना। ठीक है, बट जैसे उस वीडियो में इनको ये मूवी का नाम याद नहीं रहता, पूछते सब बच्चा लोग से, डू यू रिमेम्बर मूवी, जहाँ पे कि मतलब कुछ एफ्रो अमेरिकन लेडीज रहती है जो नासा में काम करती है, जिनको ह्यूमन कंप्यूटर्स बुलाया जा रहा था। ठीक है, इन्होंने काफी कोशिश किया, बट ही डिड नॉट रिमेम्बर द नेम है ना। ठीक है, तो ऐसे करके, तो द मूवी, द नेम ऑफ द मूवी इज एक्चुअली हिडन फिगर्स। ठीक है, तो ये मूवी एकदम मैंने देखा है, 2-3 बार देखा है। ठीक है, एंड आई रिमेम्बर, मुझे सीक्वेंस याद है एक्चुअली। ठीक है, मूवी का है ना, बहुत हद तक है ना, ये क्या होता है, कहाँ उस होता है। लेडी से सर कैलकुलेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पूछा जाता है सर उस लेडी से, तो वो बता देती है सर, वो इंडियन रहती है सर, ह्यूमन नहीं, कंप्यूटर। वो तो एक दूसरा है, वो दूसरा था, वो एक लेडी है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें 3 लेडीज का कहानी है। ठीक है, इसके अंदर में ना हिडन फिगर्स में 3 लेडीज है। ठीक है, तो ये उस समय का बात है जब नासा अपना लोगों को वहां भेजा था स्पेस में। दीज आर द 3 लेडीज एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये 3 लेडी की कहानी है यहाँ पे, प्लॉट भी आप देखिएगा कहीं पे। ठीक है ना, रिव्यूज, क्लिप्स, ओवरव्यू, जैसे ओवरव्यू है ये क्या। तो ये तीनों का असल में कहानी है। ठीक है, यही तीनों का, तब मूवी में एग्जैक्टली क्या नाम था मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो दीज 3 लेडीज वे देयर। ठीक है, तो जो नासा का एक स्पेशल डिवीजन में काम करते हैं, जहाँ पे मतलब ब्लैक वुमेन लोग को काम करने दिया जाता है। ठीक है, और तब कुछ ज्यादा ही ये प्रॉब्लम था ना, मतलब कलर का, कि ब्लैक और व्हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था उस समय, आज भी है वो सब जगह में, अमेरिका में, UK में। ठीक है, बट दैट टाइम इट वाज बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट मेन बिल्डिंग में, ठीक है, ब्लैक का घुसना अलाउड नहीं था। ठीक है,
ब्लैक जाता था थोड़ा देर के लिए, जैसे फाइल और कुछ देना पड़ा तो आ जाएगा, उनके लिए टॉयलेट्स नहीं था वहां पे, ठीक है, देयर वर नो टॉयलेट्स फॉर ब्लैक, है ना। तो व्हेन वन ऑफ दीज लेडीज, उनको काम करने का मौका मिलता है बाकी लोग के साथ में, आई थिंक शी वाज द वन, है, ठीक है, जिसको बाकी, क्योंकि मतलब इनका जो मैथमेटिक्स था वो एक टॉप क्लास का था, ठीक है, एक अलग लेवल का था, तो शी वाज अलाउड टू वर्क विद द वाइट्स, ठीक है, क्योंकि मतलब इनका कैलकुलेशन का जरूरत था वहां पे, है ना, ठीक है। तो वहां पे काम करने के लिए दिया गया, बट मतलब इनको टॉयलेट के लिए आना पड़ता था लगभग, मतलब आधा घंटा चल के आना पड़ता था, ठीक है, मतलब ये लोग का जो बिल्डिंग है वहां पे आना पड़ता था, तो ऐसा ऐसा टाइप का सिस्टम दिखाया गया उसमें, ठीक है, मूवी में, ठीक है। तो एट लास्ट मतलब ये लोग के लिए भी किया गया, मतलब प्रोविजंस बनाया गया, ठीक है। एंड इस इनको दिखाया गया कि शी वाज द फर्स्ट मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर नासा में, है ना, ठीक है। और जबकि इन्होंने कोई फॉर्मल कोर्स नहीं किया, इन्होंने अपना किताब लेके सीखा, फॉर्ट्रैन दिखाया गया वहां पे, ठीक है। सो शी हैड लर्न फॉर्ट्रैन करके वहां पे दिखाया गया, फॉर्ट्रैन का किताब हुआ एक तरह से चुरा के लाते एक लाइब्रेरी से, है ना, ठीक है, इस तरह से दिखाया गया, है ना, ठीक है। तो नाम भी दिया है, आई थिंक दीज वर द कास्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये कैथरीन, ठीक है, डॉरोथी एंड, ठीक है, मैरी जैक्सन करके, ठीक है, ये कास्ट है ये लोग का वहाँ पे, ठीक है। तो अभी जैसे इस मूवी का वहाँ पे नाम लेते हैं, ठीक है, वो है ना प्रोफेसर मौसम, एंड आई कुड रियलाइज कि मुझे ज्यादा समझ में आया आज, मतलब जब उनका डिस्कशन मैंने सुना तो आई आई कुड मतलब रिलेट टू एवरी इंसिडेंस जो बता रहे थे वो, है ना, ठीक है, आई कुड रिलेट टू एवरी इंसिडेंस एक्चुअली, ठीक है, जो चीज बताने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उन्होंने एनिएक के बारे में जो बताया कि एनिएक का असल में इन्वेंशन इसलिए हुआ था बिकॉज देखिए अभी भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री गवर्नमेंट ना डिफेंस में ज्यादा पैसा खर्चा करता है, डिफेंस का बजट बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। और ज्यादातर आप देखिएगा जो इन्वेंशन हुआ है कंप्यूटर में, दैट वाज ड्यू टू डिफेंस ओनली, ठीक है, खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, ठीक है, ज्यादातर इन्वेंशन हुआ। इनफैक्ट नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग, है ना, ठीक है, जिसमें भी पैसा लगा है ना वो डिफेंस का पैसा बहुत लगा है इन्वेंशन में, ठीक है। तो कंट्री डिफेंस के मामला में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा तो करता कोई भी, स्पेशली कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, उनका भी डीओडी है, जैसे अपने देश में भी है ना, ठीक है। ये है क्या नाम है इसका, डीआरडीओ, अपने देश में डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट है ना, ठीक है, डीआरडीओ है ना। तो डीआरडीओ में भी आप देखिएगा बहुत सारा रिसर्च होता है, ठीक है ना, तो बहुत पैसा खर्चा डीआरडीओ करता है। हाँ, यस सर। ठीक है, बहुत पैसा खर्चा होता है इसमें, तो ज्यादातर रिसर्च वहीं पे हुआ। तो ये एनिएक का भी जो यूज था ना एक्चुअली कहाँ लगा था ये, कि जैसे कोई भी मतलब ये होता है क्या बोलते हैं, मिसाइल फेंका जाएगा तो उसका मतलब ट्रेजेक्टरी क्या होगा, ठीक है, वो यहाँ से अगर हम उसको छोड़ेंगे कहाँ जाके गिरेगा वो, है ना, ठीक है। वो कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था एनिएक का, है ना, ठीक है। तब वो ट्रेजेक्टरी अगर हाथ से कैलकुलेट किया जाता है ना तो 10 घंटा लगता था, बोला जाता है, मतलब जैसे इन टाइप के जो ह्यूमन कंप्यूटर्स होते थे, इफ दे कैलकुलेट दोस ट्रेजेक्टरी इल टेक, ठीक है, 10 आवर्स 12 आवर्स फॉर देम टू कैलकुलेट, है, ठीक है। बट ये 30 सेकेंड्स में कर दिया था एनिएक, है ना, उस काम को, ठीक है। तो जो काम आपको दिन भर लगेगा वो 30 सेकेंड्स में एनिएक कर दिया था, तो उसका इस्तेमाल वही था। वो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में उसका इस्तेमाल होता था, ये मतलब मिसाइल्स का ट्रेजेक्टरी नापने के लिए कि कितना एंगल पे उसको फेंका जाएगा कि वो दुश्मन का उस अड्डा पे जाके गिरेगा, है ना, ठीक है। तो दैट वाज द यूज ऑफ इट, मतलब डिफेंस पर्पज से उसको डेवलप किया गया था उस कंप्यूटर को भी, है ना, ठीक है। तो देखिए आज जब मैंने दोबारा उस लेसन को सुना, ठीक है, हार्डली पहला लेक्चर से मैंने सुना, ठीक है, तो आई कुड रिलेट मोर एक्चुअली, ठीक है ना, आप ज्यादा रिलेट होइएगा। तो सिमिलरली इफ दे इज अ कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपको पहले से कुछ पता होगा ना, एंड देन ठीक है, जब आगे कभी ये मिलेगा आपको वापस, तो आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना, ठीक है। तो इसलिए जान के रखिए, अच्छा रहेगा ये सब चीजें भी, ठीक है। तो अभी जैसे नहीं आया है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज देखिए मैं प्रिफर करूंगा कि यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करके काम करने का एक्चुअली, ठीक है, दैट इज व्हाट आई प्रिफर, बट अदरवाइज यू कैन ऑलवेज डू दिस, ठीक है, राइट क्लिक, इसका पाथ कॉपी कर हाउ ली। टू स्टार्ट द सर्वर सर, लाइव सर्वर सर? नहीं, लाइव सर्वर नहीं, मैं तो पीएचपी का सर्वर यूज करता हूँ ना, ठीक है। तो वो अब लाइव सर्वर भी होगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बट उसका क्रेडिबिलिटी क्या है वो मुझे नहीं पता, देखिए पीएचपी का सर्वर को मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है ना। बट वो जो लाइव, क्योंकि वो है नहीं मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। इफ दैट इज अ क्रेडिबल प्रोडक्ट तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी यूज कीजिए, कोई तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। जावा, एक सर पूरे कंप्लीट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के लिए सर पीएचपी के सर्वर से सर हम मतलब ये कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, कोई भी सर्वर है आपका, उससे काम चल जाएगा, पीएचपी का है, पाइथन का है, एनी सर्वर भी वर्क एक्चुअली, ठीक है। बट देखिए पाइथन में तो कोई ऐसा सर्वर नहीं है ना, प्लेन सर्वर नहीं है वहां, तो आपको जब तक जेंगो आप इंस्टॉल नहीं कीजिएगा आपको सर्वर वर्वर नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। उसी तरह से ये, लेकिन पीएचपी में क्या है, पीएचपी में बस आपके पास पीएचपी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, प्लेन पीएचपी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है, एंड यू विल हैव द सर्वर। जैसे अभी मैं इस लोकेशन में भी अगर मैं जाके लिखता हूँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जाके अगर हम लिखते हैं PHP-S करके, ठीक है, एंड देन LOCAL लोकल HOST होस्ट कॉलन एक पोर्ट नंबर डाल दीजिए, बस हो गया आपका सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड PHP, ठीक है, इस टाइप का फाइल को सर्व करने के लिए रेडी है, ठीक है ना ये, एंड इट्स टू यस सिंपल एक्चुअली, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। लेकिन अब देखिए ये जो फोल्डर है, मतलब ये ओनली 2201, यहाँ पे हमारा फाइल्स नहीं है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसको अगर आप ओपन करके देखिएगा उसमें ब्राउजर में ना, ठीक है, तो बोलेगा फाइल नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे कोई index
ठीक है, HTML या index.php नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, ठीक है, हमको इस लोकेशन में आना पड़ेगा, ये वाला अपना हेड फर्स्ट वाला लोकेशन में आना पड़ेगा जहाँ पे index.html बनाया है हमने, ठीक है। तो cd हेड फर्स्ट, ठीक है, cd जावास्क्रिप्ट, ठीक है, cd iroc, हमारे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में आना पड़ेगा। कम टू दिस फोल्डर, यहीं पे हमारा इसी के रूट में देखिए हमको ये मिल रहा है ना, index.html है ना। नाउ आप सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वो लाइन हम वापस, सेम लाइन, दैट php डैश एस में ध्यान रखना पड़ेगा, एस शुड बी कैपिटल है ना, ठीक है। यस तो सर। एस कैपिटल, और उसके बाद में आप अपना सर्वर का नाम दीजिए या आईपी एड्रेस दीजिए उसका, ठीक है ना। जनरली लोकल होस्ट सेफ रहता है, ठीक है। नाम अगर याद भी नहीं है तो मैं नाम भी दे सकता हूँ चाहने से, ठीक है। और उसके बाद में गिव अ पोर्ट नंबर, ठीक है। तो अगेन पोर्ट नंबर कैन बी एनीथिंग, यू कैन यूज 8001, 8002, 1234, एनीथिंग कैन बी यूज। बट फायरवॉल सबको बंद करके रखता है, देयर ओनली फ्यू पोर्ट्स विच आर ओपन थ्रू फायरवॉल, जैसे 8000, ठीक है, 5000, 3000, ये सब कुछ पोर्ट है खोल के रखा गया है सिर्फ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। बाकी सब पोर्ट को फायरवॉल ब्लॉक करता है, ठीक है। तो वो पोर्ट्स काम नहीं करेगा सही ढंग से। तो इसीलिए ज्यादातर क्या होता है, ये पोर्ट पे ही आप देखिएगा ज्यादातर सर्वर ऑपरेट करता है, ठीक है, 8000 पे है ना, ठीक है। तो चलिए मैंने 8000 पे इसको स्टार्ट कर दिया, तो क्योंकि हमारा index.html बन गया है, नाउ इफ आई क्लिक हियर आप देखिएगा एक ब्लैंक पेज हमारे सामने आएगा, बिकॉज वी हैवंट डन एनीथिंग, है ना, ठीक है। अब ये प्रूफ करने के लिए काम कर रहा है, लेट्स राइट वन लाइन हियर, ठीक है। अब ये अभी 2-4 दिन पहले भी किसी स्टूडेंट के साथ साथ में, एकदम फ्रेश स्टूडेंट था, इसको वेब डेवलपमेंट ही समझना था, उसके साथ मैंने काम किया, तो मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब वो पहले भी कुछ कुछ किया हुआ है। तो पूरा बैच है असल में, वो गलगोटिया का ही, गलगोटिया नहीं, क्या कॉलेज है, IIMT करके, ठीक है, वहीं से 5 बच्चा है, ठीक है, जो रात को अभी क्लासेस करता है। तो वही बैच मैंने ऐसे दिखाया था। तो जैसे जब ये यहाँ पे मैंने लिखा बिना किसी फॉर्मेटिंग का, है ना, ठीक है, कि सपोज आई रॉक ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस है ना, सेव, एंड यहाँ रिफ्रेश कीजिएगा तो आई रॉक दिखेगा आपको। तो फिर सडनली एक क्वेश्चन क्वेरी आया वहां से, सर अगर ऐसे करके दिख जाता है देन व्हाई डू वी राइट HTML बॉडी हेड, ये सब क्यों दिखते हैं, ठीक है, नाइस ऑब्जर्वेशन एक्चुअली, ठीक है, कि जब ऐसे दिख जाता है तो, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए ब्राउजर कैन डिस्प्ले एनी टेक्स्ट लाइक दिस, है ना, आप कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, बट जब फॉर्मेट करने का बारी आएगा, ठीक है, जब स्ट्रक्चर बनाने का बारी आएगा तब नहीं हो पाएगा ना। जैसे यू कैन कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू अ टेबल अनटिल अनलेस आप उसको टेबल के अंदर दिखिएगा ना। जैसे अभी अगर मान लीजिए इसको बोल्ड करना है, ठीक है, या इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो H1 में, तो ठीक है, तो इसको तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा ना, यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है, देन ओनली, ठीक है, वो H1 बनेगा, ठीक है। तो ये होता है मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर हम एलिमेंट्स के अंदर में इसको बांधते हैं ना, ठीक है ना। तो जैसे, ठीक है, और कुछ कुछ तो कन्वेंशन भी होता है, ठीक है, कुछ कुछ कन्वेंशन जैसे ये जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दीज आर कन्वेंशन, अगर आप ये नहीं भी लिखिएगा तो भी काम करेगा, ठीक है ना, इफ यू डोंट राइट दिस। तो मोस्ट ऑफ देम आर मेटा डेटा ऑल्सो फॉर अस एक्चुअली, ठीक है, हमारे लिए भी मेटा डेटा होता है कि हम उसको देख के समझ जाए ना, स्पेशली ये सब जो है, ठीक है, दीज आर मेटा डेटा है ना, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि ब्राउजर को हमारे पेज को बेटर टाइप से इंटरप्रेट करने में मदद करता है, ठीक है ना। एंड हेड के अंदर में हम ऐसा चीज है जो कि डायरेक्टली पेज का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, वो डालते हैं, ठीक है, स्टाइल्स स्क्रिप्ट्स ये सब भी डालते थे पहले। बट स्क्रिप्ट में अभी एक एक्सेप्शन आ गया, वी आर राइटिंग इट इन बॉडी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन हमने डिस्कस किया पहले भी, कि अगर स्क्रिप्ट को आप ऊपर लिखिएगा तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा आपका पेज का लोडिंग, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई नाउ डेज स्क्रिप्ट आर रिटन, ठीक है, एट द बॉटम इन द बॉडी सेक्शन है, ठीक है, वहां लिखा जा रहा है आजकल स्क्रिप्ट को, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, हेड में लिख देते थे यहाँ पे स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे रियलाइज हो रहा है। अच्छा, आज एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने मतलब डिस्कस किया इन वहाँ पे चेतन साहब में जाता क्लास में, ठीक है ना। तो एक यशवंत कानितकर का एक प्रॉब्लम है स्वैपिंग वाला, ठीक है, बुक में है ना। तो उसका हमने 2 एल्गोरिदम बनाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ कॉपी करके लाया था, बट सबका करेक्ट नहीं था, ठीक है। तो आर यू रीड, ठीक है, वी कैन राइट इन कैपिटल, और चलिए कैपिटल में लिख देते हैं, आई थिंक दैट विल बी नाइस, कीवर्ड्स को कैपिटल में एक तरह से, ओके, रीड C, D ऐसे करके, देन 3 में अगर दोनों का वैल्यूज को स्वैप करना है हम लोग को है, ठीक है, देन यू नो द एल्गोरिथम, ठीक है। तो T टेम्पररी वेरिएबल लिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू C, उसके बाद में 4, C इज इक्वल टू D, ठीक है, देन D इज इक्वल टू T, है ना, दिस इज हाउ वी डू इट, समथिंग वेरी बेसिक, ठीक है। प्रिंट C एंड D अगेन, 7 स्टॉप, ठीक है। तो दिस इज वन एल्गोरिथम, ठीक है, ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है। अनदर वन जहाँ पे हमको मतलब थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है ना, ठीक है। तो दैट एल्गोरिथम इज समथिंग लाइक दिस, कि हमको थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, ठीक है, हमको सी के अंदर में
डाल देना है C+D, दोनों का सम को डाल देना है, ठीक है। आफ्टर दैट ठीक है, डी में दोनों का डिफरेंस को डाल देना है, -D, एंड अगेन इन सी दोनों का डिफरेंस डाल देना है, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है हमारा, ठीक है, दिस इज विदाउट, ठीक है, बट आउट ऑफ देम एज पर यू विच इज अ मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम, दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है? सर एक मिनट सर, सर इफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना सर? हाँ एग्जैक्टली, एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी, सर यहाँ पे एफिशिएंसी सर। एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम, ज्यादा और इसको क्लियर कर देते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम मतलब जो बेटर टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जी सर, सेकेंड वन तो सर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले नहीं रहा है सर। हाँ एग्जैक्टली। यस सर, तो आई आई थिंक सर सेकेंड वन सर। अब सेकेंड वन स्पेस के हिसाब से एफिशिएंट हो गया, ठीक है। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, है ना, जैसे देखिए इसमें जो तीन ही ऑपरेशन हो रहा है ना, देखा जाए तो, ठीक है। बाकी तो यस कॉमन है, बाकी दोनों में कॉमन है, बट ये देखिए, और तीन वो भी सिंपल ऑपरेशंस मतलब असाइनमेंट ऑपरेशंस है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस 3, बट यहाँ पे देखिए हर एक स्टेप में दो दो यहाँ पे। ऑपरेशन हो रहा है ना। हाँ ये। तो 6 ऑपरेशन यहाँ पे और यहाँ पे तीन ही ऑपरेशन, तो मेरे हिसाब से टाइम अगर फैक्टर है, जैसे इसे मैंने क्लियर कर दिया, टाइम है ना, टाइम इज अ फैक्टर, देन दिस इज एफिशिएंट एल्गोरिथम, ठीक है ना। हाँ स्पेस स्पेस एक एक्स्ट्रा स्पेस फैक्टर ले रहा है सेकेंड ना, वन। है ना। सर स्पेस है तो सेकेंड वन सर। हाँ स्पेस के लिए सेकंड वाला, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहा है, तो फॉर स्पेस सेकंड वन, ठीक है, इज मच मोर एफिशिएंट, ठीक है। बट ठीक है, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एफिशिएंट है ज्यादा, है ना, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि क्या मतलब, तो बहुत लोग इसको खराब एल्गोरिथम बोलेगा, ठीक है, हाँ सेकंड मतलब ये थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करके बनाया तो ये ज्यादा अच्छा है। बट अभी तो अल्टीमेटली प्रूव होता है कि ये ज्यादा अच्छा एल्गोरिथम है, ठीक है, सिंपल भी सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, ये कम समय लेगा। हालांकि अभी हमारा कंप्यूटर इतना फास्ट है, ठीक है, कि ये दोनों का एग्जीक्यूशन में आपको फर्क बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। नियरली सेम टाइम में दोनों क्या होगा, रन करेगा, ठीक है ना। बट अगर सही मायना में अगर हम वो क्या बोलते हैं एसिम्प्टोटिक में जाए, ठीक है, या मतलब हम अपना दिमाग लगाए यहाँ पे, ठीक है, एकदम डीप एनालिसिस करने जाए, तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म करना पड़ रहा है, दैट इज लेसर देन हियर, है ना, ठीक है। यहाँ पे हमको देखिए एडिशन करना पड़ रहा है, फिर असाइनमेंट करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्शन देन अगेन असाइनमेंट, ठीक है। एंड अगेन ये भी बात है ना, कौन सा ज्यादा, देखिए इसमें भी 3 असाइनमेंट है, यहाँ पे भी 3 असाइनमेंट है, तो उतना तो है ही, उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा ऑपरेशंस हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। एंड इन माय ओपिनियन, आई डोंट नो आई एम करेक्ट और नॉट, बिकॉज उस लेवल तक तो हमने काम नहीं किया है, ठीक है। इन माय ओपिनियन, ठीक है, मुझे लगता है कि ऐड करना, ठीक है, असाइन करने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, ठीक है, आई फील, ठीक है। ये जो ऑपरेशन होगा ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा देन असाइनिंग, इसमें तो क्या करना है, इसका कंटेंट को यहाँ कॉपी कर देना है, ठीक है ना। तो आई फील कि ये ऑपरेशन शायद ज्यादा डिमांडिंग होगा, ठीक है, मे बी, आई डोंट नो, बट वो हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। असाइनमेंट यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है असाइनमेंट, देखिए, ठीक है, बट असाइनमेंट के अलावा यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा ऑपरेशंस और है, ठीक है। तो आई फील, ठीक है, आई बिलीव कि ये वाला ज्यादा टाइम लेगा देन दिस वन, है ना, ठीक है। मतलब सिंपली देखने से तो यही लग रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। चलिए, अब कितना हद तक मैं सही होऊंगा नहीं होऊंगा पता नहीं, बट एटलीस्ट स्टूडेंट को सोचने पे तो मजबूर किया जा रहा है ना, कि हाँ आप इस लेवल पे भी सोच सकते हैं, ठीक है, यू कैन थिंक लाइक दिस ऑल्सो, है ना। यू मे बी रॉन्ग अल्टीमेटली कहीं पे हो सकती है, क्योंकि देखिए द वे कंप्यूटर्स दे डू थिंग्स, ठीक है, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू, ठीक है, या द वे वी डू, ठीक है, काफी डिफरेंट है ना, ठीक है चीजें। तो इसीलिए हो सकता है कि ये शायद खराब भी हो अंदर अंदर में ना, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। बट लुकिंग, ठीक है, ऊपर से देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऊपर से देखने से यही ज्यादा इनएफिशिएंट लग रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, बिकॉज इसमें ऑपरेशन ज्यादा हमको करना पड़ेगा, और इसमें क्या है, इसमें कम समय लगेगा हम लोग को, ठीक है। हाँ इन टर्म्स ऑफ स्पेस ऑब्वियसली दिस विल रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है आपको क्या हिसाब से एफिशिएंट बनाना है, ठीक है, स्पेस के हिसाब से देन तो राइट दिस, ठीक है, टाइम के हिसाब से तो इसको ले लीजिए, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए एनीवेज, ठीक है, तो ये बन गया हमारा, तो ठीक है। तो अभी मैंने इसको सेव किया, ठीक है। एंड देन अभी वहां तो कुछ नहीं, एक इमेज चाहिए तो इमेज डाउनलोड कर लेते हैं ना, ठीक है, एंड लेट्स मेक अ फोल्डर ओवर हियर, ठीक है, सॉरी, इसमें हमको फोल्डर चाहिए यहाँ पे, IMAG इमेज या इमेजेस के नाम से फोल्डर बना देते हैं हम, इसी में फोटो डाल देंगे हम लोग। तो अभी हमने देखा था ना पत्थर वाला वो, ठीक है, तो वो हम ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से भी इमेज सेव कर सकते हैं, बट इस इमेज को यहाँ ले लेते हैं कि इसका जो एक्चुअल साइज होगा, सेव इमेज, and it was in batches 201 at first JavaScript iRock images, और यहाँ पे सिंपल नाम से सेव करते हैं। और ये भी लेकिन वेब भी मैंने काम नहीं किया बहुत, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं काम करवा के।
इस तरह की इमेज वहां पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो रॉक डॉट वेब पी है ना, लेट्स सी, ठीक है, नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फोटो मुझे अच्छा लगा पर्सनली, ठीक है। या और एक देख लेते हैं कि जो मतलब इसका बैकग्राउंड, आई थिंक इट्स वाइट ओनली, शायद वाइट ही है, क्योंकि मेरा कलर उस तरह से आ रहा है अभी, ठीक है। ऐसे ये तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, तो चलिए जो भी है वो उसके हिसाब से बैकग्राउंड एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो नाउ वी हैव द इमेज हियर, ठीक है, यहाँ पे इमेज आ गया। अब इस इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई एम जी, ठीक है, एस आर सी में आई एम इमेजेस फोल्डर के अंदर में रॉक डॉट ये है, ठीक है, दे दिया हमने। अगर मतलब वो नहीं है तो आर उसी के रॉक डिस्प्ले करेगा वहाँ पे, या आप फाइल नेम भी डिस्प्ले करा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो रॉक ही लिख देते हैं हम लोग। ऑलराइट, नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, ठीक है, देखिए पत्थर आ गया, ठीक है। एंड फाइन, एकदम बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप साइज आप देख लीजिए किस हिसाब से उसका साइज बनाना है, जैसे यहाँ पे तो थोड़ा छोटा सा ही है, ठीक है। तो फॉर दैट हम लोग CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका विड्थ और हाइट हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं यूजिंग CSS। तो आप इनलाइन भी यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। या अगर आप चाहे तो ऊपर में भी इसको दे सकते हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट है, इनलाइन ही कर लेते हैं, STY स्टाइल, ठीक है। तो हाइट, ठीक है, पिक्सल्स में दे दीजिए 200 में भी पिक्सल्स। एंड विथ, विद में ज्यादा होता है नॉर्मली, ठीक है। उसका रेशियो भी आप देख सकते हैं इमेज का चाहने से डिटेल्स में जाके कि उसका प्रॉपर्टीज तो ऐसे नहीं दिख रहा है हम लोग को। अच्छा, एक काम करते हैं, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, और यहाँ से इसका हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इमेज का परमिशन ओपन विथ, नहीं वो डिटेल्स नहीं दिखा रहा है यहाँ पे इमेज का, है ना, कि एग्जैक्टली exactly क्या रेशियो में इमेज, ठीक है। तो चलिए ऐसे रफली ले लेते हैं हम लोग, स्क्वेरी टाइप का लग रहा है, बट जनरली इसमें एक्स एक्सेस में पिक्सल ज्यादा रहता है, ठीक है, देन वाई एक्सेस, है ना। तो चलिए, तो अभी 200 पिक्सल्स एंड विथ 300 पिक्सल्स करके देखता हूँ मैं, सेव इट। नहीं, चिपक गया है ना, ठीक है। तो मतलब दोनों स्क्वायर ही करके देखते हैं हम लोग, 300 बाई 300। नहीं, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आई थिंक 250, ये रेशियो जान लेना सही है, मतलब या तो वो 4:3 के रेशियो में होगा, ठीक है। तो 4:3 के रेशियो में मतलब इफ दिस इज 400, ठीक है, इफ दिस इज 400 तो वो होना चाहिए 300, है ना। तो ये 400 तो वो 300, तो ये हो गया 4:3 का रेशियो, ठीक है। होपफुली यही होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे था इमेज है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। और खींचा हुआ लग रहा है क्या? अच्छा, रहने देते, कोई बात नहीं, चलेगा, बाद में देख लेंगे उसको, ठीक है। ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और फुला हुआ, ठीक है। ओके, तो ये हमने बना दिया, ये हमारा तो ये हो गया, ठीक है ना। तो जैसे अभी तक का कंडीशन ये है, देखिए, है ना, मतलब ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं। लेट्स रिमूव दिस वन फ्रॉम हियर, इसको साइड में रख देते हैं, और यहाँ आते हैं। तो देखिए अभी तक का कंडीशन क्या है, अभी तक का कंडीशन कुछ इस तरह का है कि ये जो हमारा है, ठीक है, अभी इट्स नॉट इंटरेक्टिव, है ना, ठीक है। देखिए ना कि मतलब आप चाहे से बीच में प्लेस कर सकते हैं, सब टू यू, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। तो देखिए ये कुछ नहीं कर रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपको क्या काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट iRog HTML वेब पेज, ये बनाना है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट, तो वी हैव डन इट, ठीक है। कैसे करना है देख लिया आपने, ठीक है। एक पेज बनाना है, उसमें हमने इमेज एक डाउनलोड करके डाल दिया वहाँ पे, है ना, ठीक है। अब ये काम करना है आपको कि एक जावास्क्रिप्ट का मैसेज आना चाहिए, मतलब अलर्ट आना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे कि आप क्या कीजिएगा, यूजर को ग्रीट कीजिएगा कि वेलकम के लिए, है ना, ठीक है। तो फॉर दैट, ठीक है, आपको एक जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, तो स्क्रिप्ट, ठीक है, बनाइए नीचे में जाके बॉडी में, ठीक है। एंड पुट अलर्ट हियर, ठीक है, अलर्ट, तो उसके बाद में वेलकम टू iRock, ठीक है, वेलकम टू iRock, इस तरह से। इफ यू वांट यू कैन गिव एन एक्सक्लेमेशन साइन आल्सो, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अभी मैंने कोई इवेंट हैंडलिंग नहीं किया, ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब पेज लोड होगा ना, तो उस समय ऑटोमेटिकली कोड, ठीक है,
ये हो जाएगा, लोड हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर जब जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे इवेंट्स होता है, इवेंट हैंडलिंग होता है ना, ठीक है। तो मतलब जनरली हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस के अंदर में कोड लिखते हैं और उसको किसी इवेंट पे कॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, ये जब डॉक्यूमेंट लोड होगा तो ऑटोमेटिकली क्या